ادھر پاکستان اسلامیہ سیکنڈری اسکول کی نشانیاں ہیں. پاکستان اسلامیہ سیکنڈری اسکول سے جو میری یادیں کا مسئلہ ہے ان میں آپ سب کے ساتھ میری کوئی نہ کوئی یاد کا مسئلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہا جاتا ہے کہ ریپ اور جیل کی دوستی جو ہے وہ بڑی پکی ہوتی ہے، لیکن جیل میں تو کرائم کرتے لوگ بھی ہوتے ہیں، ریپ میں بھی کوئی پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اسکول کی دوستی سب سے پکی ہوتی ہے. اس کی بنیاد علم ہے، علم کی بنیاد پر وہ دوستی قائم ہوتی ہے. اور آپ سب اس علم کی بنیاد پر آپس میں جڑے اور یہ سلسلہ آپ کا قائم ہے. پاکستان اسلامیہ سیکنڈری اسکول کے ساتھ میرا بھی ایک ایسا تعلق ہے کہ اس کے بعد اتنا ہی عرصہ ایک اور اسکول میں رہا، لیکن پاکستان اسلامیہ سیکنڈری اسکول کے ساتھ جو میری یادیں کا مسئلہ تھی وہ ابھی تک اسی طرح قائم ہے. 2016 میں پاکستان ایسوسیشن نے مجھے ایک ایوارڈ دیا. اس ایوارڈ کا جب اعلان ہوا تو گلف ٹوڈے کی جو رپورٹر تھی اس نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ آپ کو کس بنیاد پر وہ ایوارڈ دیا گیا. تو میں نے اس خاتون سے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا، یہ تو منتظمین کو پتا ہوگا کہ وہ مجھے کس بنیاد پر ایوارڈ دے رہے ہیں، لیکن پاکستان اسلامیہ سیکنڈری اسکول اور اس دبئی کے اندر رہ کر میری سوشل ایجوکیشنل اور مذہبی خدمات جو ہے جو کچھ اللہ نے مجھے توفیق وہ شاید کچھ ایسی ہے کہ جو یہاں یادگار کے طور پر رہ گئی ہے اور جس کی وجہ سے مجھے یہ ایوارڈ دیا گیا. اور جب ایوارڈ امبیسڈر صاحب دے کی تقریب پر انہوں نے وہ ساری میری ایکٹیویٹی موونگ کیفیت میں وہ ڈالی ہوئی، وہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پیچھے موو کر رہی. تو اس سے ایک سال پہلے پاکستان سوشل سینٹر شارجہ نے مجھے ایک ایوارڈ دیا تھا، وہ ایکسیلنس ان ٹیچنگ. تو مجھے اس سے بھی اندازہ ہوا اور خوشی ہوئی کہ دبئی اور ابوظہبی سے میں مدت تک باہر بھی رہا، لیکن دبئی اور ابوظہبی شارجہ نے مجھے نظر انداز نہیں کیا. اور میرے لیے سب سے بڑا فخر آپ طالبات اور یہ میرے قابل فخر طالب علم ہے، شاگرد ہے، جن میں سے بہتوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے، فیس بک پر رابطہ ہے، واٹس ایپ پر رابطہ ہے. میری علمی فکری جتنی قابلیت ہے، میری 2 کتابیں اسی وقت شائع ہوئی جب میں اسی اسکول میں کابش رسالہ ہم نے اسٹارٹ کیا. یہ مقبول صاحب اس کے دوسرے ایجنڈے تھے اور وہ کابش جب ہم نے پہلا اس کا پرنٹ آپ میں سے شاید اس وقت کی جو عبدالقادر کا وزیر اور فاطمہ کا وزیر جو ہیں ساری رات وہ اس کو پرنٹ کرتے تھے، ساری رات 2 بجے ہم باہر ہوتے. جب عباس وزیر صاحب نے شرط لگائی تھی کہ یہ پرنٹنگ مشین جو ہے یہ اسکول میں نہیں دوں گا، میرے آفس میں ہی پرنٹ ہوگا. پوری رات ہم پرنٹ کرتے رہے اور میں سوچ رہا تھا کہ صبح ہم اسکول کیسے جائیں گے. چلو میں تو ڈیوٹی کا مارا ہوا ہوں، میں تو چلا جاؤں گا، یہ عبدالقادر اور فاطمہ کیسے جائیں گے. لیکن اتفاق دیکھیے کہ عبدالقادر اور فاطمہ خوشی کے ساتھ صبح اسکول پہنچ گئے کہ اس کاغذ میگزین کو تقسیم کرنا ہے. تو اس اعتبار سے یہ سمجھیے کہ کاغذ کے علاوہ حکیمت صاحب کے اخلاق ہم نے بنائی، بہت اچھے طالب علم اس کے ساتھ وابستہ رہے. پھر دبئی کے دوران نشر میں 10 سال تک طالب علموں کا ایک قرآن پاک کا درس رہا، وہ بھی الحمدللہ بڑی کامیابی سے جاری رہا. اور اس میں ایسا بھی ہوا کہ ایک دفعہ میرے بڑے بھائی صاحب کا انتقال ہوا، میں پاکستان آ گیا. تو ایک بہت چھوٹے سے قد کا ہمارا شاگرد تھا شربت خان پٹھاک. تو اگلے جمعہ کو وہ پہنچ گیا قرآن پاک کا درس دینے کے لیے. اسٹوڈنٹ بھی حاضر، اور دلچسپ بات یہ کہ میرے درس میں
بڑے لوگ نہیں بیٹھتے تھے، صرف ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. لیکن شربت خان جب درس دینے بیٹھا تو مسجد کے اور بھی نمازی اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور انہوں نے اس کا درس سنا. وہ 10 سال تک درس جاری رہا. اس کے اثرات الحمدللہ کسی صورت میں موجود ہیں اور وہ اثرات آج بھی آپ لوگوں کی صورت میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے. میں ابھی بطور مذاق کہہ رہا تھا نہیں بلکہ بطور خوشی کہہ رہا تھا، بلکہ عجیب و غریب کیفیت میں کہہ رہا تھا. ڈاکٹر عابد آئی اسپیشلسٹ ہیں اوکھاڑا میں. میری شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، میں گاؤں میں رہتا تھا. اب تو میرے گاؤں میں 3 سڑکیں جاتی ہیں. اس زمانے میں میرے گاؤں میں 3 کلومیٹر چل کے جانا پڑتا تھا. اور یہ عابد اور ساجد پتہ نہیں کیسے مجھے اطلاع اس زمانے میں اطلاع دینے کا سسٹم نہیں ہوتا. یہ میرے گاؤں مغرب کے وقت ہوتی ہے. اگر تھوڑی دیر بعد یہ بھول جاتے اللہ جانے یہ کام ہو جاتے. دوبارہ اللہ تعالیٰ کو اجر دے، آپ سب کو اجر دے. مسعود صاحب سے تو میرا رابطہ تقریباً معقولی میں رہتا ہے. میرے بیٹے کے بھی تقریباً سرپرست ہے، اس کی ہر بات میں اس کو گائیڈ کرتے ہیں. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور میرے بھائی شکیل اختر صاحب آپ بہت خوش تشریف لائے. آپ کی بیگم بھی یہاں اچھا میری بہت پیارے بھائی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہا گیا کہ 2 بجے بہت بہت شکریہ نیلم فیلی صاحب ہمارے محترم استاد. میں نا ماما آ رہی ہوں کہ پھر مجھے فون کریں. Thank you very much. God bless you. Can I have some attention, please? 2 minutes, please. Oh my God, Daddy, Beno, very kind teacher. अगर आप प्लीज ये कब बात में जाती है 2 मिनट दे दें मुझे प्लीज. दे आर नॉट इंटरेस्टेड. दे आर नॉट इंटरेस्टेड. मतलब मैंने सिर्फ एक ही बात करनी थी. मैंने प्लीज आप लोग मेरे एक बहुत बड़े भाई है जिनका मेरा आपको मुकाबला है. मैंने और बात करनी थी. मेरी उम्र हो गई. जिस चीज का मुझे बहुत अफसोस है, आई एम वेरी सॉरी. मैं भी वर्ड हूँ, मुझे शर्म आती है अपने वर्ड होने पर, बिकॉज हमारे टीवी बन रहा है वीडियो के साथ. तो only thing I want जो मन हजरात है कि for God sake आपकी बीवी भी किसी की बेटी किसी की बहन होती है, प्लीज बिहेव योरसेल्फ. मेरा बड़ा कम्युनिकेशन है आजकल बच्चों के साथ और मैं बहुत बात हूँ डिस्टर्ब आता हूँ. तो ये प्लीज देखिए इस्लाम जो है ना, नमाज हम बहुत पढ़ते हैं माशाल्लाह. क्या आपको पता है इस्लाम बीवी को खाना पकाने की इस्लाम में कोई भी इजाजत है, उसकी मेहरबानी है. इफ शी कुक्स इट इज हर नाइस ऑफ हर. उसकी ड्यूटी बस है अपने बच्चों की निगहदाश्त और घर को देखना है. तो मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ मन से कि अल्लाह आपको तौफीक दे. आपकी बेटियां हैं, आपकी बहनें हैं और दुनिया का मुकाफात अमल है. बस बहुत शुक्रिया. प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा. अभी देखिएगा तकरीबन आज रोज ये बताते हैं. अच्छी बात है. हर रोज रिमाइंड करवाते हैं. ये ग्रामर हमें नहीं याद होती. माशाल्लाह ये हमारे ग्रुप में एक बहुत गोल्डन एडिशन है, गोल्डन एडिशन जो 3 साल हमारे ग्रुप में है. जी बहुत शुक्रिया सर शकील साहब का. आप भी दूसरे तशरीफ लाए. हम दिल के भाग रहे से आपको वापस शुक्रिया अदा करते हैं. और जी जी मैं अपनी मोहतरम टीचर मैडम इसका से गुजारिश करूँगा कि वो गैस की तरफ तशरीफ लाएं और हमारे साथ कुछ प्यार की बातें, कुछ
खुशी हो रही है सबको देख के, अपने बच्चों को इतना बड़ा बड़ा देख के। और ये जितने लोग हैं पुराने जिनमें शदीद प्यार मोहब्बत अभी तक मौजूद है, जो कि आपके बच्चों में नहीं है। आप तो किसी को बच्चे को डांटा तो साथी पेरेंट्स आ जाते हैं कि जरूरत कैसे की है डांटने की। हमने तो इनको हर तरह प्यार भी किया, डांटा भी, पढ़ाया भी। आपको एंड दे आर ऑल थैंकफुल टू अस। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो पहले किसी छात्र ने मुझे बताया था कि वहाँ पे ना एक दो दफा गैदरिंग हुई है दुबई में भी, तो आई मिस्ड इट कि मैं नहीं हूँ इस पार्ट ऑफ इट। तो आज मुझे ये इत्तला मिली थी कि कैंसिल हो गई, मैं रह गई। लेकिन शुक्र है कि नीला मेरी बच्ची है, तो उसने कहा नहीं कैंसिल ही हुआ, आप आ जाए, जिस तरह भी होता है। तो ये है कि अल्लाह ताला हमारे को अपने अपने घरों में आबाद रखे, अच्छी खबरें आती हैं तो सुकून रहता है। सब आजकल तो हालात देखें, ये कोरोना वायरस ने कैसा डरा के रखा है सब। अब एक और टीचर हैं, उनको मैंने स्काइप पर लिया है, वो थोड़ा सा देखेंगी और मैसेज देंगी। वो मेरी वालदा है। अच्छा, सुभान अल्लाह, अगर उन्होंने उठा ये लिया। आपदा की हिम्मत है जिसने शक्लें गुम हो गई थी, फिर से मिल गई हैं। आपदा ने पहले दुबई में भी बहुत बड़ा हाँ बताया तो इससे शादी हुई है, दुबई में भी बहुत गैदरिंग की थी। और दुबई में भी इसने यादें छोड़ी थी। हाँ जी, ये बड़ी करेक्टेबल बात है, समथिंग वेरी पाकिस्तान से गए थे, पाकिस्तान से गए थे, वो मीडिया पे आई थी। हाँ जी, अगर इनिशिएटिव कोई लेता तो ये किसी और ड्यूटी के वहाँ पे जाके ज्वाइन करो और इसलिए नहीं गुड। हाँ सबने सलाम दुआ तो कर लिया इंशाल्लाह। और चूँकि सबको ये अंदाज़ा है कि प्रोग्राम बिल्कुल तब्दील हो गया, सिवाय उसकी दो चीज़ों को शायद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये अल्लाह की मेहरबानी, इसमें किसी का कमाल नहीं। वरना गवर्नमेंट की तरफ से तो ज़ाहिर है जो बंदिश थी उसमें हमें कतई इजाज़त नहीं मिल रही थी। उसके बाद इन्होंने मेहरबानी की, होटल मैनेजमेंट में ये लोग गए हैं डीसी के पास और उनसे कहा कि भाई हमें दोपहर वाले इवेंट्स को कर लेने दें, इतना तो इमरजेंसी हम नहीं क्रिएट कर सकते। खैर अल्लाह का शुक्र है, मुख्तसरन मैं कहूँगा कि जो भी हो रहा है ये भी अल्लाह का बहुत करम है। अगर ये नॉर्मल भी चल रहा होता तो हाज़रीन यही थे, मतलब हिम्मत जिन्होंने की है, जो निकले हैं वो नहीं गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा शायद वो जिन्होंने नहीं आना था वो नॉर्मल प्रोसीजर में भी शायद ना। हमारे बहन भाई कराची, पूरे पाकिस्तान और बल्कि बाहर जो दुबई वगैरह से या अमेरिका से बहन आई हैं, तो ज़ाहिर है हम उनके एहसान मानना है और हम सारे एक दूसरे के एहसान मानना है। इसलिए किसी का कोई कमाल नहीं, सबका जज्बा है, तो हम उसी को सराहते हैं। स्पेशली हमारे टीचर्स भी, चाहे वो पिंडी से आए हैं, कराची से हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो हमारे ऊपर एहसान है। तो अगर साथ में भी अब हम चूँकि मुख्तसर करें सारा, तो इसके बाद आपका बहन। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इन नामसाइल हालात में भी यहाँ आने का रिस्क लिया और इस इवेंट को कामयाब बनाया। मैंने ख्वाब तो देखे थे, लेकिन इतना बड़े ख्वाब की तब्दील मैंने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। इसलिए सबका बहुत 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 शुक्रिया यहाँ आने का। शेख इकबाल भाई का कराची से आया, वजाहत भाई कराची से आए हैं, और एक और बंदा है जो कोयटा से आया और उसने आके मुझे कहा ये चू, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, टाइम कम होने की वजह से मैं पूरी डिटेल नहीं दे सक रही, लेकिन जो लोग इससे काम में इंटरेस्टेड हैं या हमारी ये खिदमत, क्योंकि इसमें बहुत सरदर्दी है और मैं और मसूद भाई और असद भाई मिलकर पूरा टाइम देंगे इस काम को और हर एक की प्राइवेसी को अपनी प्राइवेसी समझेंगे। और सॉरी लास्ट एक मिनट लूँगा। हेल्पिंग हैंड का तस्करा किया है आपका बहन ने, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट मेंट विद वन पर्सन, उसके पीछे भी पूरी टीम है। जी बिल्कुल, अजहर भाई हैं और इसके अलावा ये कि यही जो वर्डिंग है हेल्पिंग हैंड की ऑलरेडी भी लोग में यूज़ हो रही है। इसके अगेंस्ट पहले अजहर भाई और सारी उनकी
पूरी अम्ब्रेला के अंडर 8-10 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं और ये अभी इसको स्टिल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करना है, जिसके लिए अजहर भाई बहुत ज़्यादा वर्किंग भी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। सिर्फ हमारा रिक्वेस्ट ये कि हम सबको अपने आप को एक फैमिली की तरह ट्रीट करना है, तो इसमें कोई ना किसी को क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है, जो जिस प्लेटफॉर्म पे है वो अपनी ही हेल्प करेगा एक्चुअली। जी तो जितना हम सिक्योर रखेंगे सबको इंशाल्लाह फिर सबके लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल, मैं उनको भी देता हूँ। और आखिर में ना हमने 5 मिनट मैं कुछ पूछना चाहती हूँ एक वो सॉरी इसी से रिलेटेड जो आप बात कर रहे हैं हेल्पिंग हैंड के लिए और जो मैट्रिमोनियल के लिए, जैसे आमिर का ग्रुप है वो भी तो हमारे स्कूल से रिलेटेड है, उसमें जो मेंबर्स हैं कुछ मेंबर्स जो अगर आप तो यूनिटी में है। अब ये कि सर खलीजी को ये एक आखिरी जो इम्पोर्टेंट काम है उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि जो हमारे साथी इस दुनिया से चले गए, जो असातिज़ा वो भी मेरा वो एक सारा सिलसिला जो कि वो नहीं हो सका अल्लाह की तरफ से शायद नहीं था, लेकिन हम दुआ तो कर सकते हैं। तो हम आखिरी ये जानने जो है उसमें सर खलीजी को कहते हैं कि उस सब के लिए इज्तिमाई दुआ करें। हमारे एक साथी से जो गालिबन सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते थे उनका भी सबको नाम याद है, तो बहरहाल दुआ सबके लिए है जो इस दुनिया से जा चुके हैं। मैं अब सर खलीजी को मांग देता हूँ इंशाअल्लाह। ये बोलते हैं तो वही जो प्रोग्राम हुआ था उसमें शहबाज तो वहाँ एक बड़ी दर्दनाक म्यूजिक के साथ तमाम की तस्वीरें दिखाई गई। हमारे कॉलेज, हमारे शागिर्द, हमारी शागिर्दात तो सारी जिनका इंतकाल हुआ था उनकी तस्वीर भी दिखाई गई। तो अभी फसीहुर रहमान जिसका जिक्र अभी हुआ है बहुत टैलेंटेड जर्नलिस्ट था, कुछ दो महीने पहले उसका हार्ट अटैक हुआ इस्लामाबाद में, और अभी उसके बच्चे भी किसी फील्ड में नहीं है। तो बहरहाल हम सब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुमिनीन वल-मुमिनात वल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात वल-अहया'i मिनहुम वल-अमवात इन्नका क़रीबुम मुजीबुद दाअवात। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैता मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैता मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। या अल्लाह, जो हमारे शागिर्दात, जो हमारे रफ़ीक, जो हमारे ऑफिस स्टाफ के लोग ख़वातीन व हज़रात इस दुनिया से उठ के या अल्लाह अपनी रहमत और मग़फ़िरत से उनको नवाज़ और उनकी कब्रों को नूर से भर दे, कायम कर और उनकी आखिरत जो है आसान कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातिमुन नबिय्यीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जी अब सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट की बात है जो हमारे परंपरा के लिए, वो भी प्लीज़ आप अपने रोशन पाकिस्तान के हवाले से 1-2 मिनट। बहुत शुक्रिया मुसुब भाई। मैं ये काम जो अपनी मिसेज आरिफा अजीज़ को देता हूँ कि वो थोड़ा सा जल्दी से अपना रोशन पाकिस्तान के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको यहाँ देख के बड़ी खुशी हुई। अगर सब अपनी अपनी ज़िंदगी की बातें बताने लगे तो वाकई में यहाँ हफ्ते चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो उस्ताद का बहुत शुक्रिया जो यहाँ आए, और वो वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर अस। तो वो थोड़ा सा टाइम में शॉर्ट से बताना चाहती हूँ कि हम कनाडा में रहते थे, वहाँ से यहाँ हुए सिर्फ एक मकसद लेके ज़िंदगी में मैंने और मेरे हस्बैंड ने यही सोचा कि हम कभी भी हमें टाइम मिलेगा तो हम अल्लाह ताला के लोगों की खिदमत करेंगे, और सिर्फ इसलिए कि उसको हम खुश करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ज़िंदगी के साथ इतनी उसने नेमतें अता फरमाई हैं, और बहुत ही कम अकल होने के साथ हमें नहीं समझ आती कि हम उसका कैसे थैंक यू करें। क्योंकि इबादत में शायद हम बहुत अच्छे नहीं, लेकिन यही इबादत सबसे अच्छी लगी कि इंसानों की खिदमत की जाए। और उस एक विजन को मैं लेके आई कि वहाँ मैंने देखा कि वहाँ डे केयर्स होते हैं, 8 औरतों के बच्चे एक औरत संभालती है, जिसकी वजह से 8 औरतें फील्ड में जाके काम करती हैं। इस तरह 9 लोगों को रोज़गार मिलता है। ये नहीं कि मैं औरतों के रोज़गार काम करने के हक़ में हूँ, लेकिन मैं उन औरतों के काम करने के हक़ में हूँ जिनको आटा नहीं मिलता, जिनको रोटी नहीं मिलती। वो सारी हमारी डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं जिनको इतना सैलरीज नहीं मिलती जिसकी वजह से वो घर चला सकें।
अब मैं सैलरीज का तो नहीं मतलब कर सकती थी, तो मुझे ये ख्याल आया कि मैं अपने बच्चों को संभालूं और उन औरतों को यहाँ लेके आऊँ जिनके घरों में ये काम करती हैं, वो इनके बच्चों को संभालें। आप यकीन करें, मेरे स्कूल में जो औरतें टीचर्स हैं वो अपनी मासियों की बच्चों की लुक आफ्टर करती हैं। हम उनको सुलाते हैं, खिलाते हैं, लंच देते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट देते हैं और बेहतरीन इस्लामिक एजुकेशन देते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं और साथ साथ दुनिया की भी तालीम देते हैं। पहले ये काम मैंने बहुत छोटे पैमाने पर शुरू किया था, जिसमें 25 बच्चे थे और माशाल्लाह अब मेरे पास 200 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें हम उनको पहले हम उनकी सिर्फ लुक आफ्टर खाना और एजुकेशन देते थे। अब माशाल्लाह हम उनके घरों में विजिट करके उनको राशन प्रोवाइड करते हैं, उनके समाजी मसाइल हल करते हैं। और क्या कहते हैं, बस आज इन्होंने कहा तो आपके सामने मैंने ये सारी बातें कर दी। ये नहीं कि मुझे कोई एप्रिसिएशन चाहिए, इट्स ओनली फॉर अल्लाह व्हाट वी आर डूइंग हियर। और आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको बढ़ा दे और हमारी इस काविश को दूर फरमाए। थैंक यू। आखिर में तमाम मेहमान गिरामी हमारे दोस्त भाई बहन जो भी आए हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।